Good afternoon, students. We will continue our second lesson of history, Socialism in Europe and the Russian Revolution. And today we will learn about the Civil War. What is a civil war? Civil war, a war between groups of people who live in the same country, or it is a violent conflict between the opposing groups within a country. Understand? The civil war. The non-Bolshevik socialists, liberals and supporters of autocracy condemned the Bolshevik uprising. During 1918 and 1919, the Greens, socialist revolutionaries and whites, pro-Tsarist controlled most of the Russian Empire. French, American, British and Japanese troops also involved themselves as they were worried at the growth of socialism in Russia. A civil war broke out between these troops and the Bolsheviks. Supporters of private property among the whites took harsh steps with peasants who had seized their land. And by January 1920, the Bolsheviks controlled most of the former Russian Empire. The Bolsheviks cooperated with the non-Russian nationalists and Muslim Jihadists. December 1922, Soviet Union USSR was created by the Bolsheviks from the Russian Empire. And now we will study in detail. The Bolsheviks party renamed themselves as Russian Communist Party. They created a secret police called the Cheka to control possible anti-Bolshevik means. The people who were against Bolsheviks, they were punished by Chekas. Such decisions taken by the Bolsheviks led to opposed by the people, and for this the civil war started in Russia. So what is the reason? The steps taken by the Bolshevik party, and therefore there is anger between the people, and therefore civil war started in Russia. The Bolsheviks referred to as the Reds. They have two main opponents, you can say enemies. First, the socialist revolutionaries called as Greens, and second, the pro-Tsarists called as the Whites. Pro-Tsarist means supporters of Tsar. Countries like France, Japan, America and Britain gave support to Whites and Greens. By January 1920, Bolsheviks were successful to win the civil war with the help of non-Russian nations and Jihadists. After winning the civil war on December 1922, Soviet Union, also known as USSR, United Soviet States of Russia, was created and non-Russian nationals were given political autonomy. What is the meaning of autonomy, beta? Autonomy means give a freedom to form a government. While the civil war, both banks and industries were kept nationalized. They made 5-year plans centered on the economic growth, including the fixing of prices to promote industrial growth. In Central Asia, what happened? The Bolshevik killed local nationalists. Many people in the name of defending socialism, and they also took harsh steps for nomadism.
what is meaning of nomadism? Way of life of peoples who do not live continually in the same place. It is based on temporary centers whose stability depends on the availability of food supply. So these steps cannot give them popularity, and they were failed to win the confidence of different nationalities. गृह युद्ध, सबसे पहले हमें ये समझना है बेटा गृह युद्ध यानी क्या, पर उसके पहले हम स्लाइड का ये पढ़ लेते हैं। गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और निरंकुशता के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। 1918 और 19 के दौरान ग्रीन्स यानी समाजवादी क्रांतिकारी और गोरे समर्थकों ने अधिकांश रूसी साम्राज्य को नियंत्रित किया। फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी सैनिकों ने भी खुद को शामिल किया क्योंकि वे रूस में समाजवाद के विकास से चिंतित थे। इन सैनिकों और बोल्शेविकों के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। गोरों के बीच निजी संपत्ति के समर्थनों ने उन किसानों के साथ कठोर कदम उठाए जिन्होंने उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया था। जनवरी 1920 तक बोल्शेविकों ने अधिकांश पूर्वी रूसी साम्राज्य को नियंत्रित किया। बोल्शेविकों ने गैर रूसी राष्ट्रवादियों और मुस्लिम जादीदियों के साथ सहयोग किया। दिसंबर 1922 सोवियत संघ रूसी साम्राज्य से बोल्शेविकों द्वारा बनाया गया था। अब हम इसको विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले गृह युद्ध, बेटा नाम से गृह युद्ध मतलब घर के अंदर चलने वाला युद्ध। अब घर यानी क्या, यहाँ पे देश, तो देश के अंदर मतलब एक ही देश में रहने वाले दो गुटों के बीच जब लंबी लड़ाई होती है तब उसे कहा जाता है गृह युद्ध। जैसे आप लोगों को पता ही होगा हमारे इंडिया में क्या हुआ था, जब राम जन्मभूमि को लेकर 2-4 साल पहले विवाद हुआ था तब हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, है ना। तो वो उदाहरण है किसका, गृह युद्ध का, कि एक ही देश में रहने वाले दो गुटों के बीच जब लड़ाई होती है तब उसे कहा जाता है गृह युद्ध। बोल्शेविकों ने अपनी पार्टी का नाम बदलकर रख दिया रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। उन्होंने गुप्तचर पुलिस चेका की स्थापना की, इसलिए क्योंकि ये लोग मतलब पुलिस क्या करती थी, जो भी नागरिक बोल्शेविक के खिलाफ बोलते थे उनको सज़ा देते थे। ये जो बोल्शेविकों ने कदम उठाए इसके कारण जनता उनसे नाराज़ होने लगी और गृह युद्ध शुरू हुआ। और बोल्शेविकों ने एक और गलत फैसला लिया कि सामंतों की ज़मीन किसानों में बांट दी जाए, तो रूसी सेना टूटने लगी। क्यों रूसी सेना टूटने लगी, क्योंकि उस वक्त रूसी सेना में ज़्यादातर सिपाही जो थे वो किसान थे। वो अपनी ज़मीन पाने के लिए अपने अपने गांव लौटना चाहते थे, इसलिए सेना छोड़कर जाने लगे। बेटा आ रहा है ना समझ में। बोल्शेविकों को रेड्स के नाम से जाना जाता था और सामाजिक क्रांतिकारियों को ग्रीन्स के नाम से जाना जाता था और ज़ार समर्थकों को वाइट्स के नाम से जाना जाता था। फ्रांस, जर्मनी, जापान, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने ग्रीन्स और वाइट्स को समर्थन दिया। अब सिंपल सी बात है बेटा, समर्थन क्यों देंगे, क्योंकि रूस में जो समाजवाद बढ़ रहा था तो वो उससे चिंतित थे और इसीलिए ये सभी देश रूस में समाजवाद को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ग्रीन्स और वाइट्स को अपना समर्थन दिया। जनवरी 1920 तक बोल्शेविक गृह युद्ध जीत पाए। क्यों,
क्योंकि उनको गैर रूसी राष्ट्रवादियों और मुस्लिम जदादियों ने मदद की थी। गृह युद्ध जीतने के बाद बोल्शेविकों ने 1922 में यूएसएसआर को बनाया और इसमें ज़्यादातर गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को सम्मिलित कर दिया गया। और क्या हुआ? और उनको राजनैतिक स्वायत्तता दी गई। अब यहाँ पे बेटा आपके दिल में प्रश्न उठेगा कि स्वायत्तता यानी क्या? स्वायत्तता माने आज़ादी दी गई, अपने अनुसार अपने क्षेत्र का शासन करने की अनुमति उनको दे दी गई। मतलब उनके क्षेत्र में उनका ही राज चलेगा, दूसरे किसी का नहीं। गृह युद्ध के दौरान कारखाने और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उन्होंने 5 वर्ष के लिए पंचवार्षिक योजनाएं बनाई ताकि देश की आर्थिक प्रगति हो सके। इसलिए उन्होंने चीज़ों के दाम फिक्स कर दिए ताकि कारखाने बढ़ सके, औद्योगिकरण को बढ़ावा मिले। मध्य एशिया में बोल्शेविक उपनिवेशकों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों की बड़े पैमाने पर कत्ल की, या बड़े पैमाने पर कत्ल किया। किसका? राष्ट्रवादियों का। क्यों कत्ल किया बेटा? और घुमंतुवाद की रोकथाम के लिए बड़े सख्त कदम उठाए। इनके कारण विभिन्न राष्ट्रीयताओं का विश्वास जीतने के लिए वे पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। यहाँ पे मैंने अभी बोला था आपको कि भाई उन्होंने बड़े पैमाने पर कत्ल क्यों किया? तो उन्होंने ये दलील दी कि भाई समाजवाद की रक्षा करने के लिए इनको मारना ज़रूरी है। और अब हम देखते हैं मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। A process of centralized planning was introduced with the adoption of the 5-year plans. Prices were fixed for promoting industrial growth during the first 2 plans. Industrial production increased and new factories were set up. Rapid construction led to poor working conditions and hard lives for the workers. Schooling system was developed and arrangements for the education of the factory workers and peasants were made. Creches were established in factories for children of women workers. Cheap public health care was provided and model living quarters were set up for workers. So after winning civil war, the Bolshevik party wanted a socialist society. After winning the war, Bolshevik wanted a socialist society. Therefore, they adopted a process of centralized planning. Centralized planning means that decisions are not taken independently at local level but taken by the government. Officers calculated how the economy could work and set targets for a 5-year period, and on this basis they made the 5-year plans. And for this the government fixed all prices for promotion of industrial growth. Centralized planning led to economic growth and industrial production increased. New factory cities came into being. Oil, coal and steel production increased by 100%. Fast construction work damaged the working conditions. For example, in Magnitogorsk city, a construction of a steel plant was completed within only 3 years, and for that workers lived very hard life.
and the result was, in the first year the work of steel plant was stopped for 550 times. Bapre. In winter time, workers had to climb down from the 4th floor and across the street in order to go to the toilet. A new schooling system developed for the factory workers and peasants, and special arrangements were made for the factory workers and peasants to enter universities. To look after the children of women workers, creches were formed in factories. Cheap medical facilities provided to the workers. Model living quarters were set up for the workers. But all these things were not same everywhere. The reason was that government resources were limited. समाजवादी समाज का निर्माण या समाजवादी समाज बनाना। पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाने के साथ केंद्रीकृत योजना की एक प्रक्रिया शुरू की गई थी। पहली 2 योजनाओं के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कीमतें तय की गई थी। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई और नए कारखाने स्थापित किए गए। तेजी से निर्माण के कारण काम करने की स्थिति खराब हुई और कामगारों का जीवन कठिन हो गया। स्कूली शिक्षा प्रणाली विकसित की गई और कारखाने के श्रमिकों और किसानों की शिक्षा की व्यवस्था की गई। महिला श्रमिकों के बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में क्रेच स्थापित किए गए। सस्ते सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की गई और श्रमिकों के लिए मॉडल रहने वाले क्वार्टर स्थापित किए गए। अब इसको हम विस्तार से देखते हैं। समाजवादी समाज का निर्माण। गृह युद्ध जीतने के बाद बोल्शेविक समाजवादी समाज का निर्माण चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की। केंद्रीकृत व्यवस्था बेटा उस व्यवस्था को कहा जाता है जहां फैसले स्थानीय स्तर पर ना होकर सरकार द्वारा किए जाते हैं। अफसर इस बात का हिसाब करते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह मजबूत हो सकती है, इसलिए वे 5 साल के लिए लक्ष्य तय कर देते थे। इसी आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं बनानी शुरू की थी और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी, मतलब सभी चीज़ों के दाम फिक्स कर दिए। केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। औद्योगिक उत्पादन तेज़ी से बढ़ने लगा। तेल, कोयले और स्टील के उत्पादन में तो 100% वृद्धि हुई। नए नए औद्योगिक शहर अस्तित्व में आए, मगर तेज़ निर्माण कार्यों के दबाव के कारण निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों की हालत काफ़ी खराब हो गई। क्यों खराब हो गई? उदाहरण देते हैं। मैग्नीटोगोर्स्क शहर में एक स्टील की फैक्ट्री का निर्माण कार्य 3 साल के अंदर पूर्ण किया गया। इस दौरान मज़दूरों को काफ़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। इसका परिणाम ये हुआ कि फैक्ट्री बनने के पहले साल ही 550 बार फैक्ट्री का काम रोकना पड़ा या काम रुका। मज़दूर जहाँ रहते थे वहाँ सर्दी के मौसम में कड़ाके की ठंड में उन्हें टॉयलेट जाने के लिए 4थी मंजिल से उतरकर सड़क के पार दौड़कर जाना पड़ता था। ऐसी कठिन परिस्थिति में उनको काम करना पड़ता था। मज़दूरों के लिए एक विस्तारित शिक्षा नीति बनाई गई। फैक्ट्री कामगारों एवं किसानों के लिए
विश्वविद्यालयों में एडमिशन यानी दाखला दिलाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई। महिला कामगारों के बच्चों की देखभाल करने के लिए फैक्ट्रियों में ही झूला घर खोल दिए गए। सस्ती स्वास्थ्य सेवा सबको उपलब्ध कराई गई। मज़दूरों के लिए रहने के लिए आदर्श मकान बनाए गए। लेकिन इन सारी कोशिशों के परिणाम सभी जगह एक जैसे नहीं थे, क्योंकि सरकारी संसाधन सीमित थे। मतलब सरकार के पास संसाधन नहीं थे, इसलिए सभी जगह इसका असर जो है वो एक जैसा नहीं था।